أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر اس کا القاء کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرتے رہو، اور القاء بھی فصیح و بلیغ عربی زبان میں کیا ہے۔ آپ یہاں سے پڑھیں گے جی؟ جی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضی حدیقتن، یہ باغ ہے۔ جی یہاں پر حاضی کیوں لگایا اس نے؟ حاضہ کیوں نہیں لگایا؟ حدیقتن مؤنث ہے، شاباش، بہت اچھا۔ تائے مربوطہ ہے اس کے ساتھ۔ ساتھ ہے۔ اور یہ حدیقہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ باغ۔ حدیقہ بھی کہتے ہیں باغ کو، روزہ بھی کہتے ہیں۔ روزۃ من ریاض الجنہ، روزہ جی کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے ریاض، اور یہ حدیقہ اس کی جمع حدائق ہے، حدائقن و ترابا۔ ٹھیک، یہ حدیقہ، حاضی حدیقتن، یہ کیا ہے؟ باغ ہے جی۔ یہ کیا جی؟ حاضی مدرسۃن، یہ مدرسہ ہے۔ جی یہاں پر سوال یہ ہے، یہ مدرسہ ہے، اس کا مادہ کیا ہو سکتا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ اس کا مین جو ہے کون کون سے اس کے حروف ہیں؟ دال، را اور سا، درس۔ جی، دال، را اور سین، جی یہ تینوں اس کے مین۔ اسی سے بنے گا مدرس، اسی سے بنے گا درس، اسی سے بنے گا دراسہ، اسی سے بنے گا جو ہے وہ تدریس۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آگے جی دوسری بین پڑھیں جی۔ حاضہ مسجد، حاضہ مسجدن، ٹھیک ہے، یہاں حاضی کیوں نہیں لگا؟ حاضہ کیوں لگا ہے؟ کیونکہ یہ مذکر ہوگا۔ مذکر ہے، مسجد مذکر ہے۔ جی مسجد جو ہے وہ اس کے لحاظ سے، یہ لفظ کے لحاظ سے مذکر ہے، یہ مؤنث نہیں ہے، مسجدن۔ اور مسجد کا اس کا روٹ جو لیٹر ہے کون کون سے ہے؟ بک سٹاف سین جیم دال، جی، اسی سین جین دال ہے، اسی سے سجدہ بنتا ہے، اسی سے مسجد بنتا ہے، اسی سے ساجد بنتا ہے، اور اسی سے سجود بنتا ہے۔ مین اس کا سین جیم دال ہے جی۔ یہ جی آگے پڑھیں۔ حاضہ دارن، حاضی دارن، یہ اس کا کیا معنی ہے؟ اور ایک دار گھر کو کہتے ہیں، دیوار گھر کو کہتے ہیں، دار جو ہے وہ ہاؤس کو کہتے ہیں، حاضی دارن ہاؤس کو کہتے ہیں۔ اور یہیں پر اگر بیت ہوتا وہ مذکر ہے، وہ حاضہ بیتن ہے، دار مؤنث ہے۔ ٹھیک۔ اور بیت کہتے ہیں ہوم کو، اور دار کہتے ہیں ہاؤس کو جی۔ دوبارہ آپ پڑھیں، پہلے والی بیان پڑھیں۔ جی صاحب، آقوم، میں کھڑی ہوں۔ اقومو، آقومو نہیں، اقومو پڑھیں گے۔ اقوم، آ تب اقوم، پڑھیں گے مد ہو اس پر نا، جی، اقومو اقوم، میں کھڑی ہوں۔ نہیں، میں قم، کھڑی ہوں نہیں پڑھیں گے، وہ قائم ہوتا ہے، میں قائم، اقومو اچھا، ہوتا ہے جی میں جی، کھڑی ہوں گی یا ہو رہی ہوں۔ اقومو صحیح صحیح، یقومو سے جی جی، اقوم، میں کھڑی ہوں یا کھڑی ہوں گی۔ جی جی، قم اقوم، انتا یا خالدو، جی جی، اے خالد تم کھڑے ہو جاؤ۔ تم حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، تم کھڑے ہو یا آپ کھڑے قم ہو، انتا یا خالد، ایک خالد تم کھڑے ہو جاؤ۔ یا یا خالد تم خالد تن کیوں نہیں آیا؟ یا خالد دو کیوں آیا یہاں پر؟ کیونکہ اس کے ساتھ حرف منادہ ہے۔ جی جی، اب منادہ ہے، ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ جی منادہ میں کیا قانون ہے؟ یہ جو یا ایسے کہتے ہیں حرف ندا، ندا جی کے بعد اگر جو ہے وہ معرفہ ہو، پراپر ناؤن ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو صرف ضمہ دی جاتا ہے، تنوین بھی اس پر نہیں ہوتی۔ اور یہیں پر اگر ہوتا غلام و غلامہ زیدن، یا غلامہ ہوتا پھر، ٹھیک ہے۔ بس ندا کا قانون یہ ہے کہ یا حرف ندا کے بعد اگر کوئی ایسا ناؤن آئے جو کہ پراپر ناؤن ہو، تو اس کو صرف ضمہ دیا جاتا ہے، تنوین نہیں دی جاتی۔ جی جیسے یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا ربا ہو، کیوں کو پراپر ناؤن ہو،
جی یہ اقعد یا خالد، تم کھڑے ہو جاؤ یا خالد، یا آپ کھڑے ہو جاؤ یا خالد. یا بہترین ہے جی. اس کو پڑھیں جی. نہ او کو کھڑے ہونا نہیں ہے، جی قوم کھڑے ہونا ہے، او کو بیٹھنا ہے. بیٹھنا، سوری جی، بیٹھنا. قعدہ اقعد، اور جلسہ کا معنی ہوتا ہے وہ بیٹھا، وہ جی قعدہ اور جی، جلسہ ایک ہی معنی ہے اس کا، دونوں کا. صحیح صحیح اور درست. اسی سے ہے نا قیام اور قعود، قیام بھی اسی سے ہے جی اور قعود بھی اسی سے ہے. اور یہ دیکھیں، یہ اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، قوم کا؟ روٹ ورڈ ہی کم ہے، کاف نیم ہے. نہیں، اس میں ایک حذف ہوا ہے، ایک درمیان میں ایک اور بھی تھا اس کا، وہ واو حضرت، اصل میں. یہ جی دیکھیں نا، یاد اقوم، یہ اس کا واو، وہ اس کا یاد ایک قانون ہے، ایک رول ہے جس کے تحت یہ درمیان سے حذف ہو جاتا ہے واو، اور یہ واو بعض اوقات الف میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ ایسا ورڈ جس کا درمیان الف ہو، واو ہو، یا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آغا صاحب اس کی اصطلاح پڑھی تھی لیکن اس وقت ذہن میں نہیں ہے. یہ واو، یا اور الف حرف ہم، علہ ہے حرف علت، صحیح. جی. اور اس کو کہتے ہیں معطل. معطل کہتے ہیں. معطل، معطل کی 3 قسمیں ہیں: معطل فا ہوگا، معطل فا ہوگا، معطل عین ہوگا، معطل لام ہوگا. یہ معطل فا ہے. معطل فا کو عربی میں کہتے ہیں اجوف. صحیح. اجوف کہتے ہیں، یعنی اگر درمیان والا روٹ ورڈ میں درمیان والا لیٹر اگر واو ہو، یا ہو، الف ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معطل کہتے ہیں. اور معطل کی اقسام میں 3 قسمیں ہیں: یا پہلے والا واو یا الف ہوگا، یا درمیان والا ہوگا، یا آخر والا ہوگا. درمیان والا ہو تو اسے اجوف کہا جاتا ہے. پہلے والا ہو تو اسے مثال کہا جاتا ہے. اور آخر والا ہو تو اسے ناقص کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر موسیٰ ہے، موسیٰ میں یا ہے آخر میں، ٹھیک ہے. یا اس کی اور مثال بھی قضا، قضا ربو کا اللہ تعبدا. یہ معذرت چاہتا ہوں زیادہ لمبے ہو گئے. یہ اسی سے قوم سے قائم بنتا ہے، قوم سے قائم، اسی سے قیام ہے، مقیم بھی اسی سے ہے. جی آگے جی پڑھیں یہاں سے. اقعدو، اقعدو، میں اقعدو، میں بیٹھی ہوں یا بیٹھوں گی. جی میں بیٹھتی ہوں یا بیٹھوں گی. جی. انا اقوم، میں کھڑی ہوں یا کھڑی ہو جاؤں گی، نہ، میں کھڑی ہوتی ہوں یا ہو جاؤں گی. یا میں کھڑی ہوتی ہوں. جی جی انا اقعدو، میں بیٹھتی ہوں یا بیٹھوں گی. چاہیے، بہترین ہے جی. آپ دوبارہ جو ہے وہ پہلی والی سسٹر دوبارہ پڑھیں. امشی، جی جی، امشی کا کیا معنی ہے جی؟ مجھے نہیں معلوم. ہاں سب امشی، میں چلتی ہوں، میں چلتی ہوں. جی چلنا، مشی، مشی سے، مشی کہتے ہیں چلنے کو. مشات پیدل چلنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. جا الحاج حت المشات، حاجی آگے یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آگے جو چل کر گئے تھے. اسی سے مشی، کربلا اور نجف کے درمیان جو پیدل چلتے ہیں اس کو مشی کہا جاتا ہے. امشی، امشی، میں چلتا ہوں یا جی چلوں چلتا گی. ہوں جی. اور یہاں امشی، پر یہ آپ یہ بتائیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ اس کا روٹ جو لیٹر کون سے ہیں، بکس کون سے؟ یا جی میم شین شاہ، بہترین ہے جی. اور اس کو ہم کیونکہ آخر والا حرف علت ہے اس کو ہم ناقص بھی کہیں گے، مشا یا مشی. جی جی امشی انت یا خالد، ہاں جی. جی اس کا کیا معنی ہے؟ اے خالد تم چلو. تم چلو، ٹھیک ہے جی. اور ٹیک یہ پیدل چلنے کے لیے ہوگا. ویسے جانے کے معنی وہ ذہابہ یا ذہب ہوتا ہے، اذهب ہوگا وہ. جی یہ اف یا خالد، جی اس کا اف کیا معنی ہے؟ اے خالد، اف کا مطلب رک رکو، جاؤ، رک جاؤ. رک کف جاؤ. کا معنی ہوتا ہے رک جاؤ. دیکھیں نا، آپ عربی ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کف، یہاں رکنے کا، وہاں آرڈر ہوتا ہے رکنے کا. رک جاؤ اے خالد. یہ اس کا بھی، اس میں کیا ہے، واو کاف فا ہے روٹ ورڈ اس کا. واو اس کی کسی قانون کے تحت حذف ہو گئی ہے.
वाकाफा असल में था, वाकाफा याकिफो, वकूफ इसी से है। वकूफ, ये हम हज पर जाते हैं ना, कहते हैं वकूफ अराफात, जी। अराफात में ठहरना। और बेतूता इसको कहते हैं मिना में बेतूता करना, क्योंकि बेतूता कहते हैं रात के ठहरने को, वकूफ कहते हैं दिन के ठहरने को, इसलिए वहां पर इस्तेमाल होता है वकूफ अराफात, यानी हाजियों ने अराफात में वकूफ किया, यानी ठहरे हैं वहां पर, और उसी से वाकिफ ठहरने वाला। मौकूफ, मौकूफ भी इसी से है। और ये इसी तरह कहते हैं वक्फ, वो भी इसी से है, क्योंकि वो मसलन हम कहते हैं ये जमीन हमने मस्जिद के लिए वक्फ कर दी है, यानी मस्जिद के लिए ठहर गई है, अभी किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकती। औकाफ भी इसी से, औकाफ महकमा, औकाफ भी इसी से, यानी ऐसा महकमा जो वक्फ शुदा चीजों को केयर करता है। जी यहां से जी आकिफो, आकिफ हो, ठहर जाओ। नहीं आकिफ हो, मैं ठहरता हूं या ठहरूंगा, मैं मैं ठहरता हूं ठहरती या हूँ। ठहरूं। मैं ठहरता हूँ या मैं ठहरूंगा। जी जी अना अमशी, जी, मैं चलता हूँ, ये चलूंगा, चलूंगा। अना आकिफू, मैं ठहरूंगा। मैं ठहरूंगा। ये आकिफ हो और अना आकिफ का सेम ही माना है। ये उर्दू में एक दफा आप कहते हैं कि मैं ठहर, एक दफा कहते हैं ठहरता हूँ, दूसरी वक्त आप कहते हैं कि मैं ठहरता हूँ, ये ताकीद के लिए। ठीक। जी इस ये जी दोबारा सिस्टर, आप दोबारा पढ़ें। पढ़ेंगे। नहीं वो दूसरी सिस्टर। जी तो मैं पढ़ी। अफ्ताहुल बाब, मैं दरवाजा खोलती हूँ या खोलूंगी। जी इफ्तिहिल बाबा या मुरवान, ए मुरवान दरवाजा खोलो। यही बेहतरीन है। अगली अगली कल बाबा या मुरवान, ए मुरवान दरवाजा बंद करो। सही, ठीक है जी। आप उलिकुल बाबा, मैं दरवाजा खोलती हूँ या खोलूंगी। जी ओगलिकुल बाबा, मैं या दरवाजा खोलता हूँ या खोलोगे, ठीक है जी। अना अफ्ताहुल बाबा, मैं नहीं, ये उगलिकु का मतलब बंद करना है, मैं बंद करती हूँ या बंद बंद करते हैं, करूंगी। बंद करते हैं, ये अगले का माना बंद होता है। जी। अना अफ्ताहुल बाबा, मैं दरवाजा खोलती हूँ या खोलूंगी। जी अना उगलिकुल बाबा, मैं दरवाजा बंद करती हूँ या बंद करूंगी। सही, बेहतरीन है जी। जी अब ये गलका का माना होता है कुरान में भी है ना, गल्लकतिल अब्वाब। गलका का माना होता है बंद करना, और इसके एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है सद, सद या सुद्दो, असुद्दो के माना भी वो बंद करने के माना होता है, इसका मुतरादिफ हो। और ये मैं आपसे पूछता हूँ, अगला का गलकिल बाब और कुफल बाब में क्या फर्क है? आगा साहब, अगलक होगा उसको खोलना, यानी वो बंद है आपने खोला है, और कुफ्ल होगा कि उसके ताले को खोलना। जी ना, अगलिकुल बाब का माना है दरवाजा बंद करना, जी जी अकफुलो का माना होता है दरवाजा ताला लगाना। जी, अकफुल, सही सही। कुफल कहते हैं अरबी में ताले को। जी जी आप दोबारा बयान पढ़ें। अफ्ताहुल किताब, जी किताब खोलो, या मैं अफ्ताह, मैं किताब नहीं, खोल, मैं किताब खोलता हूँ। मैं किताब खोलता हूँ। जी इफ्ताहिल किताब या साद, ए साद किताब खोलो। जी आगे। अगलिकिल किताब या साद, ए साद किताब बंद करो। तुम बंद करो, ठीक है जी। उगलिकुल किताबा, मैं किताब बंद करता हूँ। जी अना अफ्ताहुल किताबा, मैं किताब खोलता हूँ। अना उगलिकुल किताबा, मैं किताब बंद करता हूँ। ये बेहतरीन है। ये आगे इसको पढ़ें आप, दूसरी बयान पढ़ें। जी हाँ सर। अफ्ताहु आईनी है, मैं आंख आंख खोलती हूँ, जी आंख खोलूंगी। इफ्ताह इफ्ताह
ऐनका या ऐनका या हबीबू, ए जी हबीब तुम अपनी आंख खोलो, या तुम अपनी आंख खोलो, या जी तुम आंख खोलो। अगली आईना का या हबीब, ए हबीब अपनी तुम आंख बंद करो। सही, बेहतरीन जी। आगे जी। उगली को आईनी, मैं अपनी आंख खोलती हूँ। अफ्ताहू आईनी, मैं अपनी आंख नहीं, उगली को आईनी, मैं अपनी आंख बंद करती हूँ। अफ्ताहू आईनी, मैं अपनी आंख खोलती हूँ। जी उगली बेहतरीन। को आईनी, मैं अपनी आंख बंद करती हूँ। बंद करती हूँ, ठीक है जी। मौलाना साहब, मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ जी जरूर पूछिए। कि वहां पे एक जगह अफ था और दूसरी जगह पे इफ था, ये क्यों हाँ कसर और उसको क्या जी, क्यों ये अच्छा सवाल किया आपने। अफ्ताहो ये है मुजारे का सीगा, और इसमें फर्स्ट पर्सन के लिए कहा गया कि मैं खोलता हूँ। वो इफ्ता आर्डर है। ये जो इफ्ताह है ना, ये आर्डर है। ये क्या है, एक खबर दी जा रही है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं किताब खोल रहा हूँ या खोलूंगा। जी, हो गया, समझ आ गई। नहीं ये आपने जी। सवाल मैं ये किया है ना कि इफ्ताह और जी अफ्ताह में क्या फर्क है, ये सवाल आपका ना। जी बिल्कुल यही सवाल है। ये इसमें उसको कहा जाता है किताब खोलो, अच्छा सामने वाले आदमी को। इसमें ठीक है। कहा गया कि मैं किताब खोलता हूँ या खोलूंगा ठीक है, अफ्ताह में मैं खोलता हूँ और या वो खोलूं। इफ्ताह में जी ऑर्डर इसमें। है का यहाँ खोलो पे करो। यहाँ पे ठीक। एक छोटा सा फर्क है, अगर आप गौर करो तो आपको नजर आएगा, दोनों ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। अफ्ताहू में जो हे है ना, आखिरी आखिरी जो उसका हर्फ है, वो उसमें जम्मा है। जब भी आपको जम्मा के साथ नजर आए तो वो मुतकल्लिम का सीगा है, ठीक है, उसमें आप वो काम खुद कर रही हैं। लेकिन मुजारे जब का सीगा। आपको मुजारे का सीखा है, जी जी लेकिन जब आपको आखिरी जो हर्फ है इसका ये कसरा नजर आए, और उसका जो सबसे पहला हर्फ है वो, उसकी आप आवाज देखेंगी और आखिरी हर्फ की, तो फिर आपको फर्क समझ आ जाएगा। बस ये याद रखिए कि मुजारे के सीगे पे जो काम आप खुद कर रही हैं ना, उसमें हमेशा मफ्तू आता है आखिरी हर्फ। जी जी तो वैसे और कुछ लिखने में और हरूफ में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ आपके वजन का फर्क होता है, आपके इराब का फर्क होता है। जी, बिल्कुल सही बात है, वो एराब का फर्क होता है सर। जी जी, सर। अब यहाँ पर हम आज इतना काफी है, ग्रामर पढ़ लें भी, या इसको आगे मुकम्मल कर लें। नहीं रखते हैं। जी मुकम्मल, अभी आज थोड़ी ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है। जी ग्रामर रहना चाहिए, ग्रामर बड़ी इंपॉर्टेंट है अरबी में। जी, अब ये आपको दिखाई दे रहा है ये चार्ट। जी जी, अब हम इससे पहले बात कर रहे थे इसम से, नाउन से। अब हमारी बेस फेल से आ गई, और फेल में दो चीजों का जानना जरूरी है, एक वजन का और दूसरा रूट वर्ड का। मसलन मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ इसका रूट वर्ड क्या है उलूम का, तो आप बताएंगे ये है इसका रूट वर्ड। और इसमें वजन का जानना जरूरी है। वजन बनता है रूट वर्ड पर, यानी जो असली जो है लेटर होते हैं उसके मुकाबले में फा एन लाम आ जाती है, जो एक्स्ट्रा होते हैं उनके वो हु बहु आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये मालूम का वजन क्या है, मफऊलन। क्यों मफऊलन? फा एन के मुकाबले में आ गई है, और सॉरी, फा एन के मुकाबले में आ गई है, लाम फिर एन के मुकाबले में आ गई है, और मीम जो है आखिर में लाम के मुकाबले में आ गई। पर ये देखें, आपको ये समझाया जा रहा है कि ये सारे एक ही इनका रूट वर्ड है, वो ये है इल्म है। इल्म, मालूम, आलिम, तालीम, अल्लामा, मुअल्लिम, एलाम, उलूम, ये सब का रूट वर्ड एक ही है। लेकिन ये क्यों कि इसमें इसकी शक्ल तब्दील हो जाती है, स्टाइल इसका तब्दील हो जाता है, इसके लिए माना मुख्तलिफ होता है। इल्म का क्या माना है जी? इल्म का इल्म इल्म माना है, ठीक है। मालूम का क्या माना है? किसी चीज का इल्म होना। जिस चीज का इल्म हो गया, जी मुझे ये चीज मालूम है। आलिम किसे कहते हैं? हाँ, जो कर इल्म देने वाला है। इल्म जानने वाला। जानने जानने वाला, जिसके पास इल्म तालीम है। का क्या माना है? वाले इल्म इल्म को ही तालीम कहते ए,
इस इल्म को हासिल करना तालीम कहलाता है। ये जो इल्म है ना, इसको हासिल करना तालीम कहलाता है। अल्लामा कैसे कहते हैं जी? इसके पास बहुत ज्यादा इल्म हो। जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म हो उसे अल्लामा कहते हैं। ये मुबालगा का सीगा है, अल्लामा। मुअल्लिम किसे कहते हैं? उस्ताद को। टीचर को कहते हैं। यानी मुअल्लिम ये इल्म सिखाता है, ये इल्म सिखाता है, ये मुअल्लिम। एलाम किसे कहते हैं? कोई अंदाजा नहीं। इल्म का इजहार करना, यानी आपने सब के माने इसकी बेस पर करने हैं। मालूम जिसका इल्म हुआ है, आलिम जो इल्म रखता है, तालीम जो इल्म का उसूल। अल्लामा जो आदमी बहुत ज्यादा जो है वो इल्म रखता है। मुअल्लिम जो इल्म सिखाता है। एलाम जो यानी इल्म दिया जाता है, ऐलान किया जाता है। उलूम का क्या माना जी? मुख्तलिफ जैसे सब्जेक्ट्स यहाँ से। हाँ, ये इसकी जमा है, इल्म की जमा उलूम है। इल्म की जमा क्या है? उलूम है। मगर साहब ये जो इलाम है इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे काइंडली? एलामुन, जी। एलाम मिनल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ये ऐलान है। एलाम और ऐलान एक ही माने में होता ओके। है। एलाम और ऐलान एक ही है। उसमें ऐलान का मन होता है यानी बरमला करना, वाजे करना, अलनी करना। इसमें है किसी को इल्म पहुंचाना, किसी की मालूमात में इजाफा करना। और ये यानी मख्फी भी हो ऐलान सकता है कर रहे हैं बगैर कि ऐलान। काम। जी, ये मख्फी भी हो सकता है बगैर ऐलान के। ये ऐलान की मख्फी भी हो सकता है, वो अल्लाह नहीं है। जी। तो ऐसे हम आपको कह सकते हैं कि आप इल्म दे रहे हैं तो ये एलाम में आएगा। ये आमतौर ये आपका सही है कहना, लेकिन इस्तिलाही तौर पर वहां इस्तेमाल नहीं होता, किसी खास एक अनाउंसमेंट के माने में इस्तेमाल होता जैसे आपने जुमला ट्रेन भी जो इस्तेमाल में। किया था वो रिपीट करेंगे अगर साहब? है। एलाम मिनल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ये ऐलान है। सही। जज़ाकल्लाह। तो आगा साहब एक सवाल है कि ये कोई खास ऐलान के लिए होगा या जैसे अब हम बस में या ट्रेन में होते हैं तो ये जो अनाउंसमेंट होती है उसको भी ऐलान कह उसको भी सकते कह हैं? सकते हैं, उसको कोई अलग उसको कह सकते हैं। ये अच्छा, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इसका रूट वर्ड सब का क्या है? काबेला है। काफ बे लाम, काबेला। यहाँ मुख्तलिफ स्टाइल से आपको बता रहा है कि ये एक रूट वर्ड है इसका, वो काबेला है। इसी से सारे बनते हैं। किबलतुन के क्या माना है? किबला ही जैसे ये सिम। सिंत, यानी कि तरफ। यही कबील भी इसी से निकलता है। केबेला तरफ के माने में इस्तेमाल। किबलतुन तरफ के माने में। कबूल के क्या माना जी? एक्सेप्ट करना, मानना। मानना। कबूल, ईजाब कबूल होता है ना, मानना, जी जी। एक्सेप्ट करना। काबिल का क्या माना होता है कैपेबल जैसे कोई जो जी? अहलियत रखता हो जो। उसको काबिल क्यों कि वो क्या करता है? इल्म को कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, मुख्तलिफ क्वालिटी को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको हम काबिल कहते हैं। इस वजह से काबिल। मकबूल का क्या माना है? मशहूर या जैसे पॉपुलर। यानी लोगों ने उसको कबूल कर लिया है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हम उसे मकबूल कहते हैं। इस्तेकबाल का क्या माना है? जो वेलकम वाला रिसीव करना, इस्तेमाल। वेलकम किसी को करना। एक्सेप्ट करने के लिए जाना। इस्तेकबाल मैं आपको समझाने के लिए माना इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना जो माना आप बता रहे हैं वही एग्जैक्ट माना इसका, सिर्फ क्योंकि इसके रेफरेंस में, इसके दायराकार में आप ताकि नजदीक हो जाए आपका जहन। ये सारे अल्फाज इनके माने, एक इनका मरकज है, एक मेन माना है जो कि इन तमाम अल्फाज उसकी तरफ पलटते हैं। इकबाल का क्या माना है? ऊंची शान वाला, ऊंची ऊंची शान वाला, यानी शान ने उसको कबूल कर लिया है। मुकाबला का क्या माना है? कंपटीशन वो वाला यानी जी, यानी ये दो आदमी आमने सामने आ गए हैं, इन दोनों मुकाबला। की सब एक दूसरे के मुखालिफ है, इसलिए इसको मुकाबला कहा जाता है। तकाबुल का क्या माना है?
आपस में कंपैरिजन करना। हाँ, यानी आप दो चीजों को उसके साइड बाय साइड रख रहे हैं, ठीक है, और उनको दोनों को जांच पड़ताल कर रहे हैं, इस वजह से उसको तकाबुल कहा जाता है। इस सब का एक ही वर्ड है काबिला। यानी ये आपको पता है फायदा कहाँ से होगा जब ये सारी चीजें आपको आएंगी, कि आपके पास फर्ज के तौर पर ये लफ्ज आ गया है, आप डिक्शनरी में ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अगर नहीं पता कि इसका रूट वर्ड क्या है, तो आप डिक्शनरी में नहीं ढूंढ सकते। आप ये काबिला वाले सेक्शन में है, तो आप उसको ढूंढ रहे होंगे मसलन जो है बावाला में, तो बावाला में इसका माना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। दूसरा इसके अलावा ये अगला पढ़ेंगे, दरबन, ज़र्ब। दरब, दरब, ज़र्ब का क्या माना है? दवा दराबा, और ये मारना, ज़र्ब का माना है ये चोट लगाना, मारना, ठीक है। ज़ारिब का क्या माना है? मारने वाला, मारने वाला जी, ज़ारिब मारने वाला। जिस तरह वो आलिम था ना, जी, इल्म रखने वाला, ये ज़ारिब मारने वाला है। ये क्या है जी? जिसको मारा जाए, मजरूबन, जिसको मारा गया है। ये जी क्या है जी? मुजराबतुन, ये ना, मुजराबतुन क्या होता है? मुजारबतुन। मुजारबा क्या माना होता है? मुजारबतुन, कोई अंदाजा नहीं। मुजारबतुन ज़र्ब के दो माने होते हैं। मारने ज़र्ब के का एक अमल माना को होता है कहते हैं, ये, ये मारने के अमल को कहेंगे। नहीं, ये मिसाल। मारने के अमल कहेंगे जब दो आदमी एक दूसरे को मार रहे होंगे ना, जैसे मुकातला है। मुकातला है ना, दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है, दोनों तरफ से किताल हो रहा है, दोनों तरफ से जंग हो रही है। यहाँ पर भी मुजारबा यानी दोनों तरफ से मार रहे हैं। और ज़र्ब के दो माने होते हैं। एक ज़र्ब का माना होता है मारना, दूसरा ज़र्ब का माना होता है कारोबार करना भी। ठीक है। मुजारबा यानी आप वो क्या कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, किसके लिए वो पैसे ले रहा है, आप दे रहे हैं किसके लिए, कारोबार के लिए, उसे मुजारबा भी कहा जाता है। पाकिस्तान में स्कैंडल नहीं निकले थे मुजारबे के? ये मुजारबे का ये दो माने पाए जाते हैं, क्योंकि ज़र्ब का माना कई माने हैं इसके। ज़र्ब का माना मारना भी होता है, चलना भी होता है। ज़र्ब का माना मुंह फेरना भी होता है, इजराब, मुंह फेर लेना। जी आगे। मिसाल देना भी होता है ज़रबा का मतलब। जी जी, मिसाल देना भी होता है। देना के माना, मिसाल देने के माना था। ज़रब अल्लाहुल अमसाल, खुदा मिसालें देता है, कुरान में है जी। मिज़राब, ज़राबुन, क्या माना है इसका? कोई अंदाजा नहीं है, कुछ इलामों मिज़राब के पास ही होगा। ये इसमें आला है, इसमें यानी आला। जिस चीज से मारा जा रहा है। अच्छा। जैसे अरबी में कहते हैं ना मिसअद, किसको कहते हैं? लिफ्ट को कहते हैं मिसअद। ये मिसअद भी कहते हैं, मिफाल के वजन पर होती है, मिफाइल के वजन पर भी होती है। ये जी क्या है जी? इस्तिराब, इस्तिराब। इस्तिराब का क्या माना है? बच्चे को पता है। इस तरह परेशानी, बेचैनी। अब इसका ताल्लुक ज़र्ब से क्यों है इस्तिराब का? मारने से दर्द होता है तो फिर इसलिए। नहीं, इंसान का दिल धड़कता है ना, दिल मारता है, दिल ज्यादा ज्यादा झटके मारता है। ठीक है, इस वजह से इसको इस्तिराब कहा जाता है, यानी बेचैनी की कैफियत। जी, ओके। सही। इसका कदर गहरा इस्तिराब। मायने है इससे और लफ्ज इसी से का। एक और भी इस्तिराब भी होता है। जो इस्तिराब है, इस्तिरार। इस्तिरार, जी, उसका क्या माना होता है इस्तिरार? हम मानी नहीं होते ये दोनों ना लफ्ज। ना, ये इस्तिराब का माना है बेचैनी, इस्तिरार का माना है इंतजार, इमरजेंसी। ओके, इमरजेंसी। कुरान में ना मुस्तर्रन, के आदमी हराम खाना नहीं खा सकता मगर ये कि वो मुस्तर हो, मजबूर हो जाए। अच्छा, ये आगे जी, ये जी ऐसा पढ़े। एक दफा फिर बताइएगा उसका क्या मतलब है इस्तरार का। इस्तरार का माना है मजबूर, यानी मजबूरी, ठीक मुस्तर, मजबूर। आपसे जी। दरख्वास्त करूंगी खदीजा कि प्लीज ये राइट डाउन कर ले, मेरे हाथ में पेन पेंसिल नहीं है।
आटा और मसाला है कि मैं लिख नहीं पा रही तो मैं भी अभी आज नहीं थी, उस जगह पे नहीं थी अपनी नोटबुक्स के पास, मेरे जी। पास था अच्छा नहीं। ये क्या, ये दूसरी बहन पढ़े आप, ये वो अपना गिलानी बहन। किताबुन जी किताबन, इसका रूट वर्ड क्या है? काफ तेबे हाँ काफ थे काताबा इसके, कातबा। जी। ये कातिब का क्या माना है? ये किताब लिखने वाला सही, जो कातिब, कातिब लिखने वाला। जी, ये कहा जाता है ना कातिब भाई, वही के लिखने जी वाला। जी आगे जी मकतूब का क्या माना है? जो कुछ लिखा जाता है, जो तहरीर जी किया जी जाता है वो मकतूब हो जाता है। मकतूब। और ये किताब और मकतूब, इसका एक ही माना है। जी ये बाज वक़्त किताब मस्तर है, लेकिन बाज वक़्त मफूल के माने में आता है। ये होता है बाज वक़्त अरबी में कानून है कि आप बाज वक़्त मसलन मफूल का लफ्ज़ है लेकिन उस फाइल के माने में है। जैसे कहते हैं ना हम आपके मशकूर हैं, मशकूर जी असल में इसमें मफूल है लेकिन वो शाकिर के माने में आता है। सही। तो आगे। मौलाना साहब एक छोटा सा सवाल है, फिर मकतूब और किताब की एक ही मानी है, तो इसका मतलब है जिस चीज के ऊपर लिखा जा रहा है वो न, इसका माना लिखी हुई, किताब का माना लिखी हुई, लिखी। तो लिखी फिर हुई। मकतूब मकतूब तहरीर को कहेंगे या फिर जिसके ऊपर लिखा जा रहा है उस चीज को? नहीं, तहरीर को कहेंगे मकतूब। तहरीर, ठीक है, तो जैसे होता है ना मकतूबात गालिब, गालिब के खतूत। ठीक ठीक। ये जी आगे जी ये आप किताब फरशत कर। किताबतुन जी लेकिन किताबतुन में अब ये मुअन्नस उसके अंदर क्यों आया है, तो इसका किताबत क्या तो नहीं, मानी है? मुअन्नस है। किताबत, किताबत के माने, ये मस्तर के माने, मस्तर बाज का तो उसके साथ ता आती है आखिर में। तो इसका मानी क्या बनेगा किताबतुन? किताबत का माने, किताबतुन किताबत बनेगा, किताबत करना, लिखना। अच्छा जिस सही। तरह ना ज़रबत वलियन, वो भी मस्तर है, ये जी भी मस्तर है, सही। ज़रबतो है। तो इसको इस तरह कहा जा सकता है किताबतुन अलियुन। किताबत वलियन, अली की लिखाई, सही। अली का लिखना। सही। जी आगे जी। मकतबुन और मकतबुन अभी हमने पढ़ा था, मेज को भी कहते हैं जिसपे लिखा जाता है, और या उर्दू में मकतब मकतबुन, हम स्कूल को कहते हैं। या, मकतबुन जिस पर रख कर लिखा जाए, लिखने की जगह। जी, लिखने की ठीक है, जगह। लिखने की सही जगह, यानी इस सही। डेस्क को भी कहते हैं क्योंकि वहां लिख कर, हम वहां रख कर लिखते हैं, इस वजह से जी जी मकतब जी कहते हैं। जिस और पे रख के मकतबतुन, लिखा जाए। जी मकतबतुन, इसके तीन चार लाइब्रेरी। माने हैं। एक माना उसका यह है कि मकतबा, क्या कि लाइब्रेरी को भी कहते हैं। मकतबा का लाइब्रेरी। माना जी, मकतबतुन का माना इसका एक दफ्तर भी होता है। दफ्तर मतलब ऑफिस। दफ्तर, सुनो सॉरी, वो मकतबुन होता है दफ्तर, ऑफिस के माने में होता है दफ्तर, मकतबुन होता है, मकतबतुन नहीं होता। मकतबतुन इसका जो है वो एक ही माना है कि ऐसी जगह जहां किताबों को रखा गया है। जैसे बुक शेल्फ वगैरह। बुक शेल्फ, जी जी बुक शेल्फ के माने में आता है, खुद किताब खाने के माने में भी इस्तेमाल होता है। जी ये क्या जी? कतब कतब कतबतुन है नहीं। कतबतुन। कतबतुन या जी, कतबतुन। ये कतबा जी साइन बोर्ड को कहते हैं, एक जगह की तख्ती के नोटिस को कहते हैं। अच्छा। जैसे क्योंकि हम उर्दू में कुतबा ये कहते हैं, उर्दू में हम कुतबा कह रहे होते हैं उसे। कुतबा कहते हैं जी, ये कतीबा भी कहते हैं उसे। जी ये जो सारे जो है ना, किताबुन, कातिबुन, मकतूबुन, ये सारे इनमें जो एक चीज कॉमन है वो लिखना है। का थे और बेर को मिलना, जी जी लिखना। जी ये जो सड़कों के ऊपर रास्ते के लिए साइन बोर्ड होते हैं उनको भी कथवतन कह ना, सकते उसे लाफत कहते हैं। हैं। ये मखसूस जो साइन बोर्ड होते हैं उनको कहा जाता मखसूस साइन बोर्ड किस किस्म के है। मिसाल कतबा दीजिएगा? कबर के उसको कहा जाएगा। और इल्मी इल्मी जगह पर कोई और उसको कहा जाता है। सही। अगर स्कूलों के बाहर लिखा होता है मदरसा या यूनिवर्सिटी, उसको भी कहा जाएगा? उसके लिए पुराने जमाने में कहा जाता है, अभी इस्तेमाल नहीं करते उसके लिए।
जदीद अरबी में इस्तेमाल नहीं करते, फसी अरबी में इस्तेमाल करते हैं। फसी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फसी जो जदीद है उसमें इस्तेमाल नहीं करते। जी ये जी आगे। कादिरुन, कादिर का क्या माना है? कुदरत रखने वाला। हाँ, इसमें मेन चीज कुदरत है, सारी चीजें, ठीक है जी। कादारा से है। कदर से। इसके दो माने हैं, कुदरत रखने का माना भी होता है और दूसरा पैमाइश के माना भी होता है। एक कदरा, कदरा का माना है जो है पैमाइश करने के माने, अंदाजा करने के माने में, फिक्स करने के माने में, ठीक है, गिनने में माने में, काउंट करने माने, हिसाब के माने में भी है। यानी वो कुदरत से होगा तो फिर इसके माने में होगा, ताकत के माने में होगा, और अगर कद्र से है तो वैल्यू के माने में होगा। यानी ये जो है ये तकदीर मकदूर, इसके दो रूट हो सकते हैं, कुदरत भी हो सकता है, कदर भी हो सकता है। और ये बताएं कि ये मिकदार कुदरत से है या कदर से है? ये कदर से है। कदर से है, ये कुदरत से नहीं है जी, कदर से। मौलाना साहब फिर कुदरत का रूट वर्ड क्या होगा? वो उसका ये वो खुद ये वो भी काफ दाल है, काफ दाल है उसका माना, लेकिन माना उसका मुख्तलिफ है। लेकिन जो रूट वर्ड इनके आपस में जो आगे इसकी ब्रांचें हैं ना, मुश्तकात है, वो मुख्तलिफ हैं दोनों के। मौलाना साहब एक अभी आपने जो भेजा था या मैंने शायद किताब में जो ग्रामर की थी, उसमें 4 हरूफ भी दिए हुए थे और 3 वे, तो जी वो जी, वो रूट आगे कानून पढ़ेंगे हम। वो एक कानून आएगा कि जो अफाल है ना, वो उनकी किस्में सलासी है, रुबाई है और खुमासी है। सलासी में मुजरद और मजीदन फी है, रुबाई में मुजरद और मजीदन फी है। वो आगे एक कानून आएगा, बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी। जी जी। फिर तकदीरुन, तकदीर, जी तकदीर का क्या माना है? ये जो तकदीर होते हैं यानी आपकी किस्मत जी में तकदीर, जी तकदीर, यानी ये इसका मतलब है कि खुदावंद ताला ने आपके लिए एक अंदाजा मुकर्रर कर दिया, आपके लिए एक जो है फिक्स कर दिए चीज, सही। इस वजह से तकदीर से कहा जाता है, ठीक उसकी कदर मुकर्रर कर दी है, उसकी कदर यानी उसकी वैल्यू, उसकी मिकदार, मिकदार मुअय्यन होगी, इसलिए तकदीर कहा जाता है। ठीक। और मकदूरन लिखने वाला, तकदीर ना, लिखने वाला। मकदूर नहीं, ऐसी चीज जो कि होने वाली है, पॉसिबल है। क्या? कादिर का माना है यानी पावरफुल, करने वाला, कुदरत रखने वाला। ये यानी वो चीज जो कुदरत से खारिज नहीं है, पावर से खारिज नहीं है, मकदूर है, यानी मुमकिन के माने में मकदूर। ओके। जी और आगे। फिर कुदरतुन, ये किस में आएगा? कुदरतन आएगा, ये कुदरत यानी पावर। कदीर, कदीर भी। कदीर और कादर का सेम ही माना है। हम्म, कादर यानी पावर वाला, वो कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। कदीर हमेशा जो पावर में, उसे कदीर कहा जाता है। जैसे क्या? इल्म है, देखे ना, आलिम है और अलीम है। जी दूसरी बहन बता सकती है कदीर कौन सा सीगा है? फ़ईलुन का होगा। फ़ईल और क्या सिफत मुशब्बह है। जी। हाँ जी, ये क्या है जी, मिकदार, क्या है जी मौलाना मिकदार साहब, का? आपने जो मतलब इल्म और अलीम बोला है, इसमें क्या फर्क है दोनों में? इल्म जानना है, आलिम जानने वाला, अलीम जो हमेशा जानता है। ओके। हम अल्लाह के लिए अलीम का लफ्ज बोलते हैं, आलिम नहीं बोलते। कहते हैं अल्लाह अलीम बिज़ात सदूर है, कि वो जी। हमेशा, ये जो आलिम है, ये जब पैदा हुआ था आलिम नहीं था। हम्म, इसका भी दिमाग खराब हो जाए तो फिर आलिम नहीं रहेगा, जी। ठीक है जी। जी। इसको जो है बीमारी लग जाए, वो कौन सी बीमारी जिसमें इंसान भूल जाता है? जी। अल्जाइमर। अल्जाइमर हम्म, लग जाएगी, आलम नहीं रहेगा। लेकिन जो अलीम होता है वो हमेशा के लिए आलम रहता है। ठीक। जी जज़ाकल्लाह। जी फिर मिकदार उन भी, ये मिकदार से यानी
जी मिकदार का माना यानी एक खास अमाउंट, मिकदार, दाम। इस मिकदार में। मुक्तदिर, मुक्तदिर का क्या मानी है? मुक्तदिर और कादर क्या की मान होता है? मुक्तदिर थोड़ी इसमें पावर ज्यादा होती है। ओके। ये सलासी मुजरद है, ये सलासी मजीद मजीद इक्तदार से निकला है, वो इक्तदार से निकला है, ये कुदरत से निकला है। वो उसका जो मस्तर है, उसका इन्फिनिटिव, वो इक्तदार है। कहते हैं ना मुक्तदिर। मुक्तदर हलके, जो लोग इक्तदार में है, पावर में है। जी ठीक। ठीक है, आज इतना ही काफी है, फिर हम इंशाल्लाह इसकी माजी से शुरू करेंगे।